उसके कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। कुछ अत्याचार बिना किसी डर के हो रहे हैं। सरकार चुस्त होगी तो प्रशासन अच्छा होगा। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडेप्पा खाशेमपुर ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार विफल हुई है। शनिवार सुबह बीदर शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार उन पर काबू पाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव में देश में एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। कर्नाटका में अपेक्षित नतीजों से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 28 में से 28 जीतने की उम्मीद है। यह कुछ सीटें दूर हो सकती हैं। कांग्रेस को गारंटी पर चुना गया है। उन्होंने पैसा भी खर्च किया है। खाशेमपुर ने कहा कि अगर कांग्रेस हारती है तो सभी कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या जनता का दुख तेलंगाना भेजा जाता है? वाल्मीकि विकास निगम के सैकड़ों करोड़ रुपए के हस्तांतरण से लोग संशय में हैं। सीआईडी को दी गई जांच अब एसआईटी को क्यों दी गई है? खाशेमपुर ने सवाल किया कि क्या उन्हें सीआईडी अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? इसमें संदेह है कि एसटी फंड तेलंगाना को गया। चुनाव के दौरान केवल जरूरी कार्यों पर ही पैसा खर्च किया जाना चाहिए। पेयजल की समस्या पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आचार संहिता के बावजूद करोड़ों रुपए के ट्रांसफर से संदेह पैदा होता है। ಇವತ್ತೇನು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕೊನೆ ಹಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1ನೇ ಹಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 7ನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಏನು ಮತದಾನ ಆಗಿ ಜನರದು ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತಿಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. 400 ಪಾರ್ ಅಬ್ಕಿ ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಇತ್ತು. ಹತ್ರ ಅದರ ಸಮೀಪ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋದ ಸಲ ಏನೊಂದು NDA ಪರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 27 ಸೀಟ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದೆರಡು ಮೈನಸ್ ಆಗೋದು ವಿನಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು 28ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಒಂದು 2-3 ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಸಲಕ್ಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕತ್ವ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್? ಈಗ 100%. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ತಂದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 ಸೀಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು, ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮಲಗಿ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಾಸಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಸ್ತ ನಾಯಕರು ಇದ್ರದ್ದು ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ 8,500 ಕಟಾಖಟ್. ಏನ್ರಿ
ಇವತ್ತು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಟಾಖಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡು ತೆಲಂಗಾಣ ಕಳಿಸಿ ಇದೇ ಕಟಾಖಟ್ಟ ನಿಮ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇವತ್ತ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿದಾರ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಒಂದು 25,000 ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಎದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರ. ಇನ್ನು 4-5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಪಾಪ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. CID ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ SIT ಮಾಡಿದ್ರಿ. CID ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರಿ ತನಿಖೆ ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಗಳು ದುಡ್ಡೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಪೋಸೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಪ್ಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕ. ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ST ಫಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಹೌದು. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಯಾವೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬರಗಾಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से जुड़े अवैध धन हस्तांतरण मामले में किसी को नहीं बचाएगी और कानून के अनुसार कार्यवाही करेगी। यह बयान विपक्षी भाजपा द्वारा अवैध धन हस्तांतरण मामले की CBI जांच की मांग करने और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र को बर्खास्त करने की मांग के कुछ घंटों बाद आया है। सिद्धरामैया ने मंत्री नागेंद्र से जुड़े एक मामले और भाजपा द्वारा उन्हें हटाने की मांग से संबंधित एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, हम किसी को नहीं बचाएंगे, चाहे वह मामले में शामिल कोई भी व्यक्ति हो। हम कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे। धन के अवैध हस्तांतरण का मामला तब प्रकाश में आया जब निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर P ने 26 मई को आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक मृत्यु नोट भी छोड़ा था। कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सेट 18 से 20 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया था, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। नतीजों में देरी की वजह से छात्र अपनी रैंक और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज की संभावनाओं को लेकर बेचैन है और वे लगातार अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण KEA ने देरी को उचित ठहराया है। इसके लिए नए सरकारी आदेश को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि पहले सेकेंड PUC परीक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो इस वर्ष से आयोजित की जा रही है। देरी का दूसरा कारण कृषि विश्वविद्यालय से लंबित कृषि प्रायोगिक परीक्षा के परिणाम भी है। दोनों के बिना रैंक को समेकित नहीं किया जा सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi. and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार वाल्मीकि विकास निगम में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को नहीं भेजेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कथित अनियमितताओं की गहन जांच की मांग करते हुए सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि एक प्रक्रिया है कि यदि मामला 100 करोड़ रुपए गबन से अधिक का है तो सीबीआई हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने कहा कि सीआईडी द्वारा की जा रही जांच से पता चलेगा कि निगम में कितनी अनियमितताएं हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से इसे सीबीआई को नहीं सौंपेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या 2 एजेंसियां मामले की जांच करेगी, गृह मंत्री ने कहा कि 2 एजेंसियां मामले की जांच नहीं करेंगी और ऐसी स्थिति में सीआईडी को मामले को सीबीआई को सौंपना होगा। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि इसमें 187 करोड़ रुपए का मामला शामिल है। उन्होंने कहा कि सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कुछ निर्देश दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निमहंस को 2024 के नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2019 में स्थापित यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को सम्मानित करता है। निमहंस की निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने जिनेवा में यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक विज्ञान के क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाने, अनुसंधान, शिक्षा और रोगी देखभाल के लिए अभिनव दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने के लिए निमहंस की प्रतिबद्धता और योगदान को मान्यता देता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समावेशी स्वास्थ्य सेवा में भारत के प्रयासों की मान्यता है। भाजपा के दबाव में राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में धन के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी मनीष खरबीकर के नेतृत्व में एसआईटी में 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे। यह निगम अधिकारी चंद्रशेखर के सुसाइड नोट और उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ निगम की शिकायत की भी जांच करेगा। बैंक ने संबंधित नकदी लेन देन की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अनियमितताओं के प्रकाश में आने के बाद बैंक ने संबंधित लेन देन को धोखाधड़ी वाला घोषित कर दिया। पूरी जांच सुनिश्चित करने और दोषियों की शीघ्र पहचान करने के लिए हमने सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इसके अतिरिक्त जांच लंबित रहने तक बैंक के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बेंगलुरु में निगम के मुख्यालय में अधीक्षक के रूप में कार्यरत चंद्रशेखर ने 26 मई को शिवमोगा में अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। नोट में उन्होंने अपने वरिष्ठों और आदिवासी कल्याण मंत्री एन नागेंद्र पर निगम के बैंक खाते में अज्ञात खातों से धोखाधड़ी से धन हस्तांतरित करने के गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है कि अगर विधायक पुलिस थानों में जाकर बैठेंगे तो पुलिस अधिकारी कैसे काम करेंगे। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर इस तरह के आचरण की अनुमति दी गई तो पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं होगी, इसलिए हमें पुलिस की सुरक्षा करनी होगी, अन्यथा कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि विधायक आपराधिक मामलों के सिलसिले में पुलिस थानों में जाकर बैठेंगे। उन्होंने बेलतांगड़ी विधायक हरीश पूंजा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कई सवाल पूछते हुए यह टिप्पणी की। यह टिप्पणी बेलतांगड़ी तालुका भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष शाहिराजा शेट्टी से जुड़े एक मामले में पुलिस को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से कथित रूप से बाधित करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई है। पुलिस थानों पर हमलों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर विधायक ने पुलिस थाने जाने के अधिकार पर सवाल उठाया। जस्टिस दीक्षित ने कहा है कि यह कोर्ट विधायकों के पुलिस थाने जाने के खिलाफ है जब दूसरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। पूंजा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने दलीलें दी कि शेट्टी की पत्नी का फोन आने के बाद विधायक पुलिस थाने गए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि पुलिस बिना कोई कारण बताए देर रात उनके पति को ले गई। यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने शनिवार को इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और दावा किया कि वह पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को न्याय दिलाने में विफल रहे हैं। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल सेक्युलर के निलंबित सांसद रेवन्ना को शुक्रवार को पुलिस हिरासत में भेजा गया। जर्मनी से लौटने के बाद बेंगलुरु पुलिस की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उन्हें 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। रेवन्ना को शुक्रवार की सुबह विशेष जांच दल एसआईटी के गिरफ्तार कर लिया। वह जर्मनी से आधी रात के बाद बेंगलुरु पहुंचे थे। वो 27 अप्रैल को देश छोड़कर चले गए। रेवन्ना को भागने की इजाजत देने के लिए मोदी पर निशाना साधते हुए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि एक सामूहिक बलात्कारी को भागने देना मोदी की गारंटी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा दायर याचिका पर विधायक एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी किया। इसमें उनके बेटे और हासन्स के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कथित यौन उत्पीड़न पीड़िता के अपहरण के संबंध में विशेष अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। अदालत ने मैसूर के केआर नगर पुलिस थाने में दर्ज मामले में एसआईटी और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया। रेवन्ना ने अपहरण के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज मामले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने एसआईटी और रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार को भाजपा द्वारा दायर मानहानि के
मुकदमे में विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। दोनों को जमानत मिल गई है। निजी मानहानि का मुकदमा जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम है, भाजपा के एमएलसी और महासचिव केशव प्रसाद द्वारा दायर किया गया था। शिकायत पिछले साल राज्य में भाजपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार दरकार के बारे में राज्य कांग्रेस द्वारा समाचार पत्रों में जारी किए गए विज्ञापनों के बारे में थी, जिसमें 40% कमीशन का आरोप भी शामिल था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन विज्ञापनों ने भाजपा को बदनाम किया है। इसी बीच राहुल गांधी के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए पेशी से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। जब शिकायतकर्ता ने आवेदन पर आपत्ति जताई तो विशेष अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि क्या लगातार दूसरी बार छूट आवेदन की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने अभी तक छूट आवेदन पर आदेश पारित नहीं किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इसके कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।